Hello everyone, welcome to Genesis EduZone. Today we are going to learn about Java programming language. So Java programming language असल में होता क्या है? Just like our Python class, Java programming language is also a programming language, but इसमें थोड़ा बोल सकते हो थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिल गया है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत पहले आया है पाइथन से भी। ठीक है, इसको अगर आपको जानना है तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय अ पर्सन नेम्ड जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, ये आदमी असल में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले बनाना शुरू किया था। इसके साथ और भी बहुत सारे इसके टीम में थे आदमी, बट ये पहला बंदा था। ठीक है, सो ये काम करता था आपका सन माइक्रोसिस्टम सन माइक्रोसिस्टम में ये काम करता था। और 1991 में इसके माइंड में एक ख्याल आता है 1991 कि इसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना पड़ेगा जिसका नाम है जावा। এবার জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা তাহলে কেন বানানো শুরু হয়েছিল, এইটার কারণ ছিল সেই কালে আর কি, মানে আমি বলছি 1991 এর সেই সময় তোমার অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা তুমি সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলো, এগুলো মানে হচ্ছে লো টু মিডিয়াম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। লো মিডিয়াম মানে লো লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, মিড লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, এইগুলোর আর কি খুব পরিমাণে তোমার বলতে পারো ট্রেন্ড ছিল। তো এইগুলো সমস্যা কি ছিল, আমি ধরো আমার ল্যাপটপে আমি ধরো একটা প্রোগ্রাম লিখলাম, সেটা আমি অন্য কম্পিউটারে আমি কিন্তু রান করতে পারবো না। তার জন্য জাভা সলিউশন নিয়ে আসলো কি, এই হচ্ছে তোমার ইন্টার ডিভাইস কানেক্টিভিটির একটা তোমার ফিচার নিয়ে আসলো, যেটা হচ্ছে তুমি একটা ডিভাইসে তুমি একটা প্রোগ্রাম লিখলে সেটাকে তুমি মাল্টিপল ডিভাইসেসে তুমি রান করতে পারবে। অর্থাৎ এই জিনিসটার জন্য বলতে পারো জাভা আজকে এই জায়গায়। জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি অনেক সার্ভারে, অনেক কি মোস্ট অফ দি সার্ভারসেই তুমি দেখতে পাবে কি জাভা চলছে। ঠিক আছে, ব্যাক এন্ড তুমি যে কোনো ওয়েবসাইটে দেখবে জাভা বা জাভা স্ক্রিপ্ট চলছে। জাভা স্ক্রিপ্ট বলতে পারো এরই খানিকটা পার্ট, কিন্তু ওইটা একটুখানি বলতে পারো কম সিনট্যাক্সে। জাভার যে সিনট্যাক্সের প্রবলেম রয়েছে, জাভা স্ক্রিপ্টটা এর থেকেই ভিত্তি করে বানানো, কিন্তু ওইটাতে একটু ছোট ছোট আছে আর কি সিনট্যাক্স গুলো আছে। সো আমাদের ফার্স্ট স্লাইডে রয়েছে তোমার ইন্ট্রোডাকশন। সো জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি, একটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। সো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড মানে কি, কি রিয়েল লাইফে যা যা তোমার জিনিসপত্র তুমি দেখতে পারো, সেই জিনিসগুলোকে তুমি যখন একটা প্রোগ্রামেটিক ওয়েতে তুমি যখন আর কি দেখাচ্ছ, সেইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং। ঠিক আছে, এইটার ব্যাপারে আমরা পরে একটু বেটার ভাবে জানতে পারবো যত আমরা জাভার কোডস আর কি দেখতে থাকবো, কি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড মানে কি হয়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, যেটা আমি বললাম কি একটা কম্পিউটার ধরো রয়েছে যে তোমার উইন্ডোজ ইউজ করছে, উইন্ডোজ, আর একটা কম্পিউটার রয়েছে যেটা হচ্ছে লিনাক্স ইউজ করছে। ঠিক আছে, এবার তুমি এখানটা একটা প্রোগ্রাম বানালে, ধরে নেওয়া হচ্ছে 1.java। এবার এই প্রোগ্রামটাকে তুমি এখানেও রান করতে পারবে, এইটাই হচ্ছে জাভার মেন ফিচার, যেটাকে আমরা বলি কি প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ঠিক আছে, এবার এখানটা উইন্ডোজ আর লিনাক্সের জায়গায় তুমি ম্যাকিনতোশও রাখতে পারো বা তুমি অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমও তুমি রাখতে পারো, কিন্তু সব জায়গায় সেমই কাজ করবে তোমার প্রোগ্রামটা। মানে এখানটা ধরো তুমি হ্যালো ওয়ার্ল্ড এর প্রোগ্রাম লিখলে লিনাক্সে গিয়েও সেমই দেখাবে। ঠিক আছে, তারপরে রয়েছে হচ্ছে রাইট ওয়ান্স রান এনিওয়্যার, মানে এইটাই কি একটা জায়গায় লিখলে নিয়ে তারপর যেখানে ইচ্ছা তুমি আর কি রান করতে পারবে এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে। এবার হচ্ছে ওয়াই লার্ন জাভা। এবার জাভা কেন জানাটা আমাদের দরকার, দেখো বেসিক্যালি তুমি যদি দেখতে চাও তোমার একটা প্রোগ্রাম জানলেই হবে, তাই না? তুমি ধরে নাও পাইথন জানলে বা তুমি ধরে নাও সি জানলে, এইটা জানার কি দরকার? এইটা জানার দরকার হচ্ছে যেহেতু এটা মোস্ট পপুলার বলতে পারো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ার্ল্ডে, তার কারণ কি এটা সব প্রায় all servers use this programming language actually। ঠিক আছে, so widely used in industries such as Android apps, আমরা যে ফোন ইউজ করি তার মধ্যেও তোমার জাভা রয়েছে, বা তোমার লার্জ সিস্টেমস তুমি মাইক্রোসফট সার্ভার, একটু আগে আমি বলছিলাম মানে হচ্ছে এটা সার্ভার। ঠিক আছে, সার্ভার সে ইউজ হয়। আর হচ্ছে স্ট্রং কমিউনিটি সাপোর্ট, মানে কি কি তুমি যখন প্রোগ্রাম করবে, তোমার ধরো কোনো জায়গায় তোমার প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে, তুমি
ওইটাকে তুমি অনলাইনে সার্চ করলেও তুমি অনেক জায়গা দিয়ে তুমি ওটা বোঝার একখানা সোর্স পেয়ে যাবে। এইটাই হচ্ছে তোমার অনলাইন কমিউনিটি সাপোর্ট একটা স্ট্রং পেয়ে যাচ্ছ, কারণ অনেকজনই ইউজ করে জাভা প্রোগ্রামিং। ঠিক আছে, নেক্সট আমাদের দেখবো একটা সিম্পল জাভা প্রোগ্রাম। সো এইখানে রয়েছে তোমার একটা জাভা প্রোগ্রাম, এইটাকে আমরা বলবো বেসিক প্রোগ্রাম। সো এখানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আমরা ফার্স্টে কয়েকটা আর কি আমরা ওয়ার্ডস নিয়েছি, যেটা হচ্ছে পাবলিক, একটা হচ্ছে ক্লাস, আর তারপরে রয়েছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড। এইবার পাবলিক ক্লাস হ্যালো ওয়ার্ল্ড, এই পাবলিক ক্লাসটা, পাবলিক ক্লাস, এইটা হচ্ছে ধরে নাও তোমার সিনট্যাক্স, জাভার লেখার সিনট্যাক্স। তোমার পাইথনে কিন্তু এরকম কিছু কিন্তু করতে হতো না। পাইথনে তুমি যাবে, প্রোগ্রাম একটা বানাবে, তুমি ধরো বানাচ্ছ 1.py, পাইথনের এক্সটেনশন যেটা নিয়ে, তারপর তুমি ওর ভিতরে তুমি লিখবে প্রিন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড, তোমার হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এটা হচ্ছে জাভার সিনট্যাক্স, অর্থাৎ এই লাইনটা মাস্ট দিতেই হবে। এবার তুমি যদি আলাদা করে জানতে চাও, পাবলিককে বলি আমরা অ্যাক্সেস মডিফায়ার, আর ক্লাস আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড পার্টে জানবো এটা। ঠিক আছে, সো হ্যালো ওয়ার্ল্ড, এবার এইটা কি, এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার ফাইল নেম, ফাইল নেম। ঠিক আছে, এই হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা হচ্ছে তোমার ফাইল নেম, মানে তুমি এই যে প্রোগ্রামটা লিখছো না, একটা ফাইলের মধ্যেই নিশ্চয়ই তুমি লিখবে, সো ওই ফাইলটারই নাম হচ্ছে তোমার হ্যালো ওয়ার্ল্ড। এইটাই হচ্ছে তোমার ফাইলের নাম। এবার শুধু হ্যালো ওয়ার্ল্ড কিন্তু থাকবে না, এটা যেহেতু জাভা, সো ডট জাভা। ঠিক আছে, এবার তারপরে হচ্ছে পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেন স্ট্রিং, তারপর হচ্ছে আর্গস। এইটাও হচ্ছে তোমার জাভার সিনট্যাক্স। এইটা মানে কি, এইটাই হচ্ছে তোমার মেন জায়গাটা যার মধ্যে তুমি কোড লেখা শুরু করবে। এই যে ব্র্যাকেটস রয়েছে, এই ব্র্যাকেটস এর মধ্যেই তোমার কোড থাকবে। আর এই ফার্স্ট যেটা তুমি একখানা তুমি বলতে পারো ব্লক বানিয়েছো, সেই ব্লকের মধ্যেই থাকবে হচ্ছে তোমার মেন ফাংশনটা। ঠিক আছে, সো আরেকবার যেটা আমি বললাম আরেকবার আমি বুঝিয়ে দিই। তোমার ফার্স্ট একটা ব্লক থাকবে, এই যে একটা ব্লক, ব্লকের তুমি ধরো প্যারেনথেসিস দিয়ে স্টার্ট করলে এন্ডও করতে হবে। এবার এই ব্লকটা কি তোমার ফাইল নেম, ফাইল নেম ব্লক আমি চলো বললাম এটাকে। আর এর ভিতরে আরেকটা ব্লক থাকবে যেটার নাম হবে হচ্ছে মেন, মেন। এবার এরও যেমনি প্যারেনথেসিস স্টার্ট হবে, এরও সেমনি এন্ড হবে। এবার তার ভিতরে তুমি নিজস্ব প্রোগ্রামটাকে লিখবে। আর হ্যাঁ, মেনের বাইরেও তুমি প্রোগ্রাম লিখতে পারো, যার জন্য আমাদেরকে ফাংশন ইউজ করতে হবে। এই স্লাইডেই পরের দিকে রয়েছে তোমার ফাংশন। ঠিক আছে, সো এবার এই জিনিসটার পরে কি তোমার সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলএন রয়েছে। এবার এই জিনিসটার মানে কি, আমরা পাইথনে যেটা শিখেছিলাম প্রিন্ট, প্রিন্ট এরকম ছিল দেখতে। ঠিক আছে, সো এই সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলএন জিনিসটাও এই সেম, এই প্রিন্ট, মানে এইটাই বলতে পারো এই জিনিসটা। তুমি এই জিনিসের ভিতরে যা যা করবে, এই জিনিসের ভিতরেও তাই তাই করবে। দেখো এখানটা প্রিন্ট আর এলএন দেওয়া, এলএন মানে কি হয়, নেক্সট লাইন, অর্থাৎ এই ক্যারেক্টারটা মানে হচ্ছে এলএন। এইটা মানে হচ্ছে তুমি একটা লাইন লিখলে, ধরে নাও আমি লিখলাম কি অভিজ্ঞান, না, আচ্ছা, অভি স্ল্যাশ এন নিয়ে হচ্ছে খান্না। ঠিক আছে, সো এইটা মানে কি, আউটপুটটা দেবে হচ্ছে ফার্স্ট লাইনে নামটা দেবে, সেকেন্ড লাইনে টাইটেলটা দেবে। ঠিক আছে, সো এর ভিতরে কি হচ্ছে দেখো, এখানটায় প্রিন্ট এলএন এর ভিতরে লিখছি আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড, তারপরে গিয়ে তোমার এই প্যারেনথেসিসটা ক্লোজ হচ্ছে, তারপরে এইটারও ক্লোজিংটা এই যে রয়েছে। সো এইটার আউটপুট কি দেবে তাহলে তোমাদের, হ্যালো কমা ওয়ার্ল্ড। ঠিক আছে, এটা ছিল হচ্ছে সিম্পল জাভা প্রোগ্রাম। এবার এই প্রোগ্রামটা লেখার পরে তুমি এটাকে এক্সিকিউট কিভাবে করবে, এটা ধরে নাও লিখলে, তোমাকে আমি একটু আগে বললাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট জাভা ফাইল বানাবে। এবার ওই সেম ফোল্ডারটার ভিতরে গিয়ে তোমাকে কমান্ড প্রম্পট ওপেন করতে হবে, নিয়ে তোমাদেরকে লিখতে হবে হচ্ছে জাভা সি, মানে জাভা কম্পাইল, এইটাকে শর্টে আমরা জাভা সি বলি। নিয়ে তোমার ফাইল নেম, যেটা আমাদের ক্ষেত্রে কি, এটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট জাভা। ঠিক, এইটা লিখলে এন্টার মারলে, তোমার যদি কোনো এরর্স যদি না থাকে তোমার প্রোগ্রামে, তো তোমার এখানটায় পরের লাইনে আবার চলে আসবে তোমার কমান্ড প্রম্পটে যেরকম আর কি দেখায়,
তারপরে তোমাকে লিখতে হবে জাভা হ্যালো ওয়ার্ল্ড। এইখানে কিন্তু এক্সটেনশন দেবে না। এইবার এখানটা তুমি যদি বুঝতে যাও তো এই ফার্স্ট লাইনটাতে কি করবে কি এ একটা আউটপুট জেনারেট করবে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট ক্লাস। এবার সেকেন্ডটাতে আমরা কি ওই ক্লাসটাকে আমরা জাভার দ্বারা আর কি এক্সিকিউট করছি। এবার ডট ক্লাস যেহেতু রয়েছে অতএব ওইটা লেখা তোমাদের অপশনাল বলতে পারো, ওইটা লাগবে না, অতএব সেই জন্য জাভা হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখছো, কিন্তু আসলে ফাইলটার ডট কিন্তু রয়েছে, মানে এক্সটেনশনের রয়েছে হচ্ছে ক্লাস। ঠিক আছে, তারপরে রয়েছে জাভা সিনট্যাক্স। জাস্ট লাইক ইন আওয়ার पाइथन केस वी ऑल्सो हैव जावा सिंटैक्सेस। सिंटैक्सेस का मतलब क्या होता है कि एक वे ऑफ राइटिंग होता है। तुम इस तरह से नहीं लिख सकते इंग्लिश अल्फाबेट में, तुम इस तरह से स्टार्ट नहीं कर सकते कि आई लाइक दी कार। ये करेक्ट सिंटैक्स नहीं है इंग्लिश राइटिंग का, इसलिए हम इस साइड से इसको स्टार्ट करते हैं। सो जावा में भी बहुत सारे सिंटैक्सेस है, इसको ध्यान में रखते हुए हमको प्रोग्राम बनाना पड़ता है। सो जावा सिंटैक्स के अंदर क्या क्या पड़ता है तुम्हारा, फर्स्ट मैंने बता दिया सिंटैक्स क्या होता है, इसके बाद है डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप्स क्या होता है तुम्हारे, मैंने पाइथन में एक्सप्लेन किया था कि पाइथन में हमको डेटा टाइप मेंशन नहीं करना पड़ता है। सपोज मैं यहाँ पे पाइथन के कोड में मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट होगा जावा में तुम्हारा इंट ए इक्वल्स टू 10, क्योंकि जावा को नहीं पता होता कि तुम किस डेटा टाइप से डील कर रहे हो। सो इसको समझाना पड़ेगा कि ये एक इंटीजर टाइप है, और इंटीजर टाइप का क्या काम है मैंने बताया था कि वो कोई भी डिजिट्स को ले सकता है। ठीक है, पॉइंट वैल्यूज नहीं लेगा, वो सिर्फ डिजिट्स को लेगा, डिजिट्स एंड नंबर्स। ठीक है, फिर आता है हमारा फ्लोट, फ्लोट बी इक्वल्स टू 1.2, ये फ्लोट वैल्यूज को लेगा, मतलब डेसिमल वाला वैल्यूज को। नेक्स्ट आता है हमारा कैर सी इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर ए, इस तरह से ये वैल्यू लेगा सिंगल या डबल कोट। और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डी इक्वल्स टू वर्ल्ड। ठीक है, ये होता है हमारा जावा का सारा वेरिएबल। और लास्ट है हमारे पास एक बुलियन, बुलियन ई इक्वल्स टू ट्रू लिख सकते हैं या फिर फॉल्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा बेसिक डेटा टाइप जावा में। और ये स्ट्रिंग मैंने पाइथन क्लास में भी बताया था, स्ट्रिंग का क्या काम होता है, ये बहुत सारे, ये बेसिकली एक वर्ड को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। जैसे कैरेक्टर है, ऐसे समझ सकते हो कि स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ हम ले सकते हैं। ठीक है, और कैरेक्टर्स में कोई एक सिंगल अल्फाबेट या डिजिट ले सकते हैं, और उसमें ये कोटेशन देना मैंडेटरी होता है। ठीक है, सो वेरिएबल का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो इंट x इक्वल्स टू 5। और हाँ, लास्ट में कोई भी जावा प्रोग्राम के लास्ट में, जावा लाइन के लास्ट में हमको ये वाला सेमीकोलन लगाना पड़ता है। सपोज सिस्टम डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंटलन, और उसके अंदर मैं लिखता हूं हाय। अगर ये पाइथन होता तो ये सब कुछ भी नहीं लगता, ये हम लिख सकते हैं प्रिंट हाय। बट क्योंकि ये जावा है इसलिए इसको एंड करना पड़ेगा एक लाइन को इस तरह से सेमीकोलन लगा के। ठीक है, फिर आता है हमारा कमेंट। जस्ट लाइक पाइथन में हम कमेंट कैसे लगाते हैं, एक लाइन के आगे अगर मैं ये सिंबल दे दूं तो वो कमेंट लग जाएगा। कमेंट का मतलब क्या है, तुम्हारा जो रीडर है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इस लाइन को वो इग्नोर कर जाएगा। जस्ट लाइक दिस इन जावा वी हैव दिस स्लैश कमेंट।
स्लैश कमेंट भी ये इस जैसे सेम ही काम करता है, ये भी एक लाइन को इग्नोर कर देगा, ठीक है। अगर मैं एक प्रोग्राम लिखूं जावा का, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक क्लास न्यू, और यहाँ पे मेन के अंदर स्ट्रिंग, ये बस सिंटैक्स लिख रहा हूं मैं अभी, स्ट्रिंग आर्ग्स, ये आर्ग्स एक वेरिएबल है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, फिर इसका पैरेंथेसिस स्टार्ट, फिर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको मैंने शॉर्ट में ही लिखा है एसओपी, और अंदर मैंने लिखा हाय, ठीक है। इसको कोटेशन से बंद करेंगे, और नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, ठीक है। इसको भी कोटेशन से बंद कर दिया, और इसका ये बंद हो गया, और ये मेन हमारा जो पब्लिक क्लास है इसका भी मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। सो इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, फर्स्ट लाइन में तुम्हारा रहेगा हाय, सेकेंड लाइन में रहेगा हेलो। सो सपोज करो अगर मुझे कमेंट लगाना है इस लाइन में, सो यहाँ पे मैं एक स्लैश इस तरह से लगा दूंगा, फिर जब मैं इसको रन करूंगा इस प्रोग्राम को, तो मेरा आउटपुट सिर्फ हाय रहेगा, ठीक है, सॉरी, मेरा आउटपुट रहेगा हेलो, ये हाई वाला पार्ट नहीं आएगा था, ठीक है। फिर आता है कंपैरिजन जावा वर्सेस पाइथन। तो हम लोग देख चुके हैं कि पाइथन में हमको कम लिखना पड़ता है, जावा में हमको ज्यादा लिखना पड़ता है। सो पाइथन के केस में क्या होगा, इजियर सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब वही होता है फॉर्मेट किसी भी चीज को लिखने का। सो इजियर सिंटैक्स है हमारे जावा के पास, फास्टर टू राइट कोड, ठीक है। पाइथन में फास्ट क्यों कोड राइट हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिंटैक्स ही आपका इजी पड़ेगा लिखने में, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं एक बंदे को कहता हूँ कि तुम 10 किलोमीटर भागो, और एक बंदे को मैं कहता हूँ कि तुम 1 किलोमीटर भागो, अगर दोनों का स्पीड सेम होगा, सो आसानी से आप कह सकते हैं कि बंदे बी का आपको डेस्टिनेशन में पहुंचने में कम समय लगेगा। इस तरह से ही जावा एंड पाइथन के केस में देखो क्या होता है कि जावा का कोड बहुत ज्यादा लेंदी होता है पाइथन के कंपैरिजन में। सो पाइथन हमेशा ही फास्टर टू राइट अ कोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है जावा। জাভা बहुत ज़्यादा স্ট্রিক্ট होता है, মানে আমি যেটা বলছি কি তুমি এই সেমিকোলন ধরে একটা লাগাতে তুমি ভুলে গেলে, তোমার জাভা প্রোগ্রাম রানই করবে না, এতটা পরিমাণে স্ট্রিক্ট হচ্ছে জাভা। তুমি ফাইল নেম তুমি ধরো ক্যাপিটালে রয়েছে মাই ফাইল, আর তুমি লিখছো মাই ফাইল, দুটো কিন্তু সেম তোমার না, ঠিক আছে, কারণ জাভাতে তোমার कैपिटलाइजेशनটাকেও चेक করে। बट बेटर फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, क्यों लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए बेटर है, क्योंकि तुम सब जानते हो कि सर्वर्स में बाकी सारे बहुत बड़े बड़े कंपनीज में ये जावा का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है, ठीक है। इसलिए लार्ज प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो तो जावा में ज्यादा स्कोप मिलता है आपको, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है आपके सिस्टम में जावा बेस्ड। सो आपको बहुत ज्यादा सारा मॉड्यूल्स आपको नहीं लाना पड़ता, ठीक है। की डिफरेंस क्या है, जावा यूजेस कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं अगर लिखूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे आता है आपका स्ट्रिंग आर्ग्स, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आता था, ठीक है। और पाइथन के केस में क्या हम करते थे कि हम कोटेशन देते थे, हाँ, पाइथन में हम क्या होता था कि अगर मैं इफ का ही ब्लॉक ले लूँ, इफ यहाँ पे हम कोटेशन देते थे और फिर यहाँ से लिखना चालू करते, पर जावा में यही सेम ही होगा, पर यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी एक बार देख लो। यहाँ पे इंटीजर है x इक्वल टू 5, फ्लोट है x इक्वल टू 3.14, इसको भूल जाओ, ठीक है।
स्ट्रिंग है एक हमारे पास, नाम के अंदर क्या है, जॉन। सो जॉन JOHN, हम 4 अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं इसलिए ये स्ट्रिंग है। अगर मैं सिर्फ जे लिखता तो भी स्ट्रिंग के अंदर चल जाता है, पर हम कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। इसको अगर मैं लिखूं कैर एन, सॉरी नेम इक्वल्स टू यहाँ पे जे, ये रन कर जाता है। पर अगर मैं इसको लिखता जॉन, ये रन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 अल्फाबेट्स आता है, ठीक है। लास्ट वाला हमारे पास वेरिएबल क्या है, बुलियन। बुलियन इज वैलिड वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पे आइदर आप ट्रू लिख सकते हो या फॉल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पास ऑपरेटर्स। सो जावा में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जस्ट लाइक पाइथन सेम ही यूज होगा सबका। प्लस में प्लस कर सकते हो आप दोनों वेरिएबल्स का। सपोज करो मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट a इक्वल्स टू 10 और इंट b इक्वल्स टू 20, ठीक है। सो आप इंट c इक्वल्स टू a प्लस b ये लिख सकते हो। तो इसको अगर मैं प्रिंट करूं system.out.println, यहाँ पे मैं c लिखूं, सो इसका आउटपुट क्या देगा आपको, फर्स्ट में प्लस है, सो 10 प्लस 20 क्या होगा आपके पास 30, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करूं, अगर यहाँ पे मैं माइनस दूं तो भी वैल्यू उस तरह से, अगर माइनस दूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 20 माइनस 10, सो -10, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाऊं तो उस तरह से ही आपका कैलकुलेट होगा। और हाँ, एक चीज याद रखना कि जावा में, क्योंकि हम नहीं जानते कि वेरिएबल क्या है, सॉरी जावा में हम जानते हैं वेरिएबल क्या है। सो ইন্টিজারের মধ্যে আমি কি বলেছি কি পয়েন্ট ভ্যালুস কিন্তু আসবে না। সো আমি এখানটা যখন ডিভিশন লাগালাম, सो a डिवाइडेड बाय b, मतलब सॉरी इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, ठीक है। सो यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b हमको आउटपुट मिल रहा है क्या, 2। अगर मैं यहाँ पे 10 के जगह 6 ले लेता हूँ तो हमारा आउटपुट क्या देना चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग, बट आउटपुट हमारा देगा 3, बस 3, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि ये c वाला वेरिएबल हमारे पास इंटीजर में है और इंटीजर डेसिमल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। और कंपैरिजन स्टेटमेंट ऑपरेशंस में हमारे पास डबल इक्वल्स टू है, मतलब लेजिट चेक करेगा, अगर उसका वैल्यू सेम एज मेंशन्ड है तो ही वो काम करेगा। नॉट इक्वल्स टू मतलब वो अगर नहीं रहेगा, अगर हमारा पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल a इक्वल्स टू 10, और मैंने चेकिंग किया इफ वेरिएबल a और a नॉट इक्वल्स टू 10, तब जाके वो रन करेगा, और बाकी सब सेम पाइथन का जैसा ही है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स नेक्स्ट हमारे पास आता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास है एंड और नॉट, ठीक है। सो सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर और इंट a इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास है इंट b इक्वल्स टू 20, और मैं एक इफ ब्लॉक लिखता हूँ, इफ a इक्वल्स टू 10, और लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे हम यूज करेगा एंड, दो बार देना पड़ेगा, एंड b इक्वल्स टू 20, देन ये वाला पार्ट आपका रन करेगा, अदरवाइज एल्स रन करेगा। सो देखो a इक्वल्स टू 10 ये ट्रू है, b इक्वल्स टू 20 ये भी ट्रू है, सो ये रन करेगा। अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू 20 से कमा के मैं इसको 2 कर देता हूँ तो इसका आउटपुट क्या होगा,
सो इसका आउटपुट रन नहीं करेगा, ये एल्स पार्ट में चला जाएगा, क्योंकि इसका आउटपुट ट्रू देगा, क्योंकि ए का वैल्यू 10 है बट बी का वैल्यू 20 में कैलकुलेट कर रहा हूँ, बट बी का वैल्यू तो है 2, इसलिए ये वाला पार्ट नहीं रन करेगा। ठीक है, और हमारे पास है लॉजिकल और। तो लॉजिकल और का क्या काम है, देखो मैं इसको हटा के लॉजिकल और कर देता हूं। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर आपको 2 बार ही यूज करना पड़ेगा, ये इसका सिंटैक्स है। सो आइदर ये ट्रू होना चाहिए या फिर इसको ट्रू होना चाहिए, ठीक है, तो ही ये रन करेगा। अगर दोनों गलत निकला तो ये रन नहीं करेगा, अगर दोनों सही निकला तो भी ये रन करेगा। ठीक है, सो ए का वैल्यू 10 है, इसका मतलब ये ट्रू है। बी का वैल्यू 20 रखा है, पर हमारे पास ओरिजिनल है बी का वैल्यू 2, सो ये वाला फॉल्स हो गया। सो ट्रू एंड फॉल्स मिलके ये वाला रन करेगा, क्योंकि एक ट्रू हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल स्टेटमेंट। सो जस्ट लाइक इन पाइथन वी जस्ट यूज एन एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस इन जावा। ठीक है, बाकी सब सेम ही है पाइथन के जैसा। सो इंटीजर ए का एज का वैल्यू क्या है, 18 है, और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, सो ये वाला पार्ट प्रिंट होगा, एल्स ये वाला पार्ट प्रिंट होगा। ठीक है, सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का मतलब क्या है, एज आइदर ग्रेटर देन 18 होना चाहिए और एज इक्वल्स टू 18 होना चाहिए। ठीक है, सो और में मैंने क्या बताया था इस वाले स्टेटमेंट में, अगर एक भी साइड ट्रू आ जाता है तो इसका आउटपुट आपको जनरेट कर देगा इस स्टेटमेंट के अंदर। सो सॉरी यहाँ पे 18 होगा। सो एज क्या ग्रेटर देन 18 है, एज का वैल्यू हमारे पास क्या है 18, सो ग्रेटर देन 18 तो 18 नहीं है, सो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है हमारा। पर ये वाला स्टेटमेंट देखो, एज का वैल्यू अगर 18 है, सो हाँ हमारे पास 18 है एज का वैल्यू, सो एज का वैल्यू 18 है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट रन करेगा, ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा, ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। ठीक है, सो अगर मान लो कि ये एज का वैल्यू 18 ना होके यहाँ पे होता 10, तब क्या रन करता है, ये नहीं रन करता, क्योंकि ग्रेटर देन 18 यहाँ पे आपका 10 मैंने लिया है। सो 18 क्या आपका, सॉरी 10 क्या आपका 18 से ग्रेटर देन है, नहीं। एज क्या आपका 18 है, नहीं, हमारे पास 10 है, सो ये रन नहीं करेगा। पर अगर मैं 10 के जगह मैं ले लेता हूं आपका 22, अब देखो एज क्या 18 से ग्रेटर है, हाँ 22 तो ग्रेटर है 18 से, सो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। और ये वाला स्टेटमेंट देखो, एज 18 होना चाहिए बट हमारे पास है 22, सो ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, फिर भी आपका ये वाला स्टेटमेंट ही रन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लूप्स, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, सेम एज इन पाइथन। फॉर लूप में हम पाइथन में क्या लिखते थे, फॉर आई इन रेंज 5, सो इसका आउटपुट आपको क्या देता था, यहाँ पे मैं लिखता हूं प्रिंट आई, इसका आउटपुट आपको क्या देता था 0 1 2 3 4, क्योंकि ये 5 के आगे आगे से काउंटिंग आगे तक काउंट करेगा। सो ये सेम है आपके जावा में, देखो इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, इस पार्ट को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इस पार्ट को हम बोलते हैं आपका कंडीशन, कंडीशन, इस पार्ट को हम बोलते हैं अपडेट। ठीक है,
सो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन आई का इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, और मैं यहाँ पे आई प्रिंट करता हूँ। तो फर्स्ट देखेगा ये फॉर लूप आई का वैल्यू 0 है, सो यहाँ पे जावा का आउटपुट प्रिंट हो रहा है, आई का वैल्यू ये प्रिंट करेगा 0, फिर जाएगा 0 क्या 5 से कम है, हाँ है, इसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा 1, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 1 प्रिंट करेगा। इस तरह से करते करते ये आई का वैल्यू 4 प्रिंट कर देगा। 4 प्रिंट करने के बाद ये जाएगा इंक्रीमेंट में, ये इंक्रीमेंट देगा 1, ठीक है। सो अभी हमारे पास आई का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। सो 5 का वैल्यू क्या 5 से कम है, नहीं, कम नहीं है, सो ये ब्रेक कर जाएगा ये फॉर लूप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल लूप। सो वाइल लूप में हमारे पास है एक इंटीजर, जस्ट लाइक इन पाइथन वी हैव टू डिक्लेयर द इंटीजर फर्स्ट, ठीक है। फिर हमें उसको कंडीशन देना पड़ेगा, ये इनिशियलाइजेशन है यहाँ पे, ये यहाँ पे कंडीशन है, और यहाँ पे है आपका अपडेट। ये आप बोल सकते हो कि while loop is just like for loop but it is old age loop actually, ठीक है। while loop अभी ज्यादा यूज होता है पर for loop ज्यादा आसान है। देखो आप एक लाइन में ही सब कुछ कर सकते हो, पर while loop में आपको एक्स्ट्रा आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। सो हमारा प्रोग्रामिंग का मोटो क्या है कि हम शॉर्ट बनाना चाहते हैं एक प्रोग्राम को लिखने में, ঠিক আছে। তো এইখানটা কি হচ্ছে কি আমরা ফার্স্টে ইনিশিয়ালাইজেশন করছি, আই এর ভ্যালু 0 রয়েছে, তারপরে আই এর ভ্যালু হচ্ছে আমরা দেখছি কি কন্ডিশন দিচ্ছি একটা কি লেস দ্যান 5 হবে, তারপর প্রিন্ট করবে। সো ইনিশিয়ালি আই এর ভ্যালু কত, আমি যদি এখানটা আউটপুট লিখি ইনিশিয়ালি আই এর ভ্যালু 0, সো 0 প্রিন্ট করলো। তারপর আই প্লাস প্লাস মানে কি আই ইকুয়ালস টু আই প্লাস 1, সো এই সাইডটাতে তো চেঞ্জ হবে না, এইখানটায় কি 0 রয়েছে আমাদের ভ্যালু, প্লাস 1 দিলে আমাদের কত হয়ে যাবে 2 হয়ে যাবে। সো উপরে যাবে আবার এই জায়গাটায় আসবে, 2 কি 5 এর থেকে ছোট, হ্যাঁ ছোট, তো প্রিন্ট করতে হবে। সো সরি এখানটা 2 হবে না, এটা 0 প্লাস 1, এটার আউটপুট হবে হচ্ছে 1, ঠিক আছে। সো এখানটা 1 প্রিন্ট করবে, এখানটা তারপর 2 প্রিন্ট করবে, এরকম 3 4 4 লাস্ট প্রিন্ট করে দেওয়ার পরে এখানটা इंक्रीमेंट রয়েছে 4 प्लस 1 5 হয়ে যাবে। सो 5 इज लेस देन 5, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। इसका आउटपुट आएगा इस तरह से। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, दिस इज आवर लास्ट स्लाइड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।